we'll be doing the chapter a little faster today because you already have some idea about this chapter. I hope so. Chalo, let's start. So the first part is this. We have to understand these things in order to understand elasticity. What are the things? Number one is stress and number two is strain. These are the two things. So you are writing stress and strain. Write them, start. Be active. Write them, stress and strain. Now as far as stress is very simple. This is nothing but the internal force, restoring force that I was talking about initially. The internal restoring force developed per unit area of a substance is called stress. But during equilibrium, in equilibrium, what happens? This internal force, restoring force, becomes equal to the external deforming force during equilibrium. So we can take this force, internal restoring, to be the external force we are applying during equilibrium. So stress can be said to be the ratio of force and area. And in other words, the force applied per unit area is called stress. But actual meaning, the force developed within a body to restore its unstrained conditions, that means initial conditions of length, volume, or shape and size. Remember these three things. These are going to play major role now. Length, volume, or shape size. It may include twisting as well. So if these... Excuse me, sir. Yes. Sir, sorry to disturb you, sir. Actually, I joined a bit late. So, sir, is this the first thing that is being done or something else has been? First thing. First thing. Thank you so much. And your voice is recorded because we are recording the class and you will be very famous in history. Just joking. Chalo. Next part. So this internal force developed per unit area of for a substance when we try to deform it by applying external force is called stress. So this is stress. So simple meaning, stress equals to force by area. Chalo, let us get back the momentum. Simple meaning is stress equals to force by area, so its unit would be Newton per meter square. So we have done the dimensions of stress, that is mLT to the power minus 2 divided by, this is force and area L square. So what will be the dimension of stress? M L inverse T to the power minus 2. That's it. So this is stress, Newton per meter square unit. Now let us move on to strain because that is more interesting. So give heading strain. Now strain can be of three types. Number one, let us first understand the meaning of strain. What is strain? If the deforming forces are applied on a body, then I told you three things: length, volume, or shape size. If any of these three things changes, then we say that the body has been strained. So strain meaning change in maybe length, maybe volume, maybe shape size. So change in dimensions or configurations of a body. Simple meaning क्या है? Simple meaning is length, volume, or shape size. If there is a change by a deforming force in a body, then we say that the body has undergone a strain. So strain simply means change in dimensions.
Now this change in dimensions, as written there, three things I told you to remember. So these are the three things. Number one, length may change. Number two, volume may change. And number three, the shape or size may change. Now if length changes, suppose draw this picture. This is a rod of length L, maybe the rod I told you in case of the lift. And if you try to stretch it by a deforming force F, then it will elongate a small amount. So the initial length was L, capital L, and the elongation is small l. So we measure strain. There is a simple and single formula to measure strain. Strain is given by what change you have made, right? Strain equals to change in dimension divided by original dimension. Original dimension. Dimension means you have understood those dimensions. So any change in dimension divided by original dimension, this ratio is the measure of strain, how much strain has happened. So from this picture, can you understand what should be the strain in case of length changes? The strain will be given by the change in length divided by original length. That's it. Change in dimension, original dimension. Here dimension is concerned is length. So change in length by original length is called longitudinal strain. What type of strain? Longitudinal. So longitudinal strain is given by change in length by original length. I have written here change in length as small l, original length as capital L. You may write this as dl, but d capital L, huh? Remember, divided by capital L. When you want to represent strain by calculus, dl by L, then both are capital L. But algebra, small l, that is the change in length, by original length, capital L. And you can well understand, as this is a ratio of same dimensions, ratio, so it will have no unit. So strain has no unit, neither any dimension. And this is the longitudinal strain. अब बताओ, if you have any question related to this, any doubt, any question, पूछो, no problem, ask me. If you have any question or doubt in this part, longitudinal strain. I'm counting, yes. বলছি যে চেঞ্জ ইন এর মধ্যে ডেল্টা মানে অরিজিনাল লেন্থ আর ওই করে মাইনাস যে ঠিক বলেছো। ডেল্টা এল কে আমরা স্মল এল লিখেছি, আর যদি ডেল্টা এল লেখো জাস্ট লাইক দিস ক্যালকুলাস পার্ট, ইউ ক্যান রাইট লাইক দিস delta capital L by capital L, and never write delta small l, because small l is delta capital L. Okay, so these are the notations how we represent this. Now let us come to volume strain. Okay, next part is volume strain. Volume strain happens when the volume changes, because we have learned strain means change. So volume can change, but याद रखना, shape size should not change. Shape same, volume chota bada. That means that can be done if you place I would say a bird the balloon. Yes, if you place a bird the balloon inside a tank, a water tank. Why water tank? Imagine that this water has great height and applies great pressure on this balloon. But the pressure will be applied uniformly on the balloon. And we will imagine here, we will consider here that the pressure at all the points are same. Size of the balloon negligible. Anyway,
But that is not main thing here. Main thing is if we apply force from all directions uniformly, then only this object will shrink, that is the balloon will shrink like this. Notice karo. The volume changes, the volume decreases, but the shape spherical remains spherical. Once spherical, always spherical. ये एक दूसरा डायलॉग है. Once a soldier, always a soldier. Car anyway. So this spherical shape remains the same, only the value changes. So the initial volume was capital V. Suppose the final volume is suppose something, suppose X. So this volume is X. What is the volume strain? What is the volume strain from this picture? Who says this? Who says this? The volume strain. Sir, x by minus x by b. हाँ, अरे ट्रैप में फंसने जा रहा था एक भाई साहब, लेकिन someone corrected him. Very good. The change in volume, x is not the change, x is the final value of the volume. So you have to find, as she said, Megbalika, that is, it has to be delta, that means change in volume. Initially V, finally X. So change is V minus X divided by the original volume, that is V. Now we represent this thing as small v by capital V, just like here, small l by capital L. So small letter here will definitely mean the change. Otherwise, you can always write it as delta capital V by V. Delta V means change in volume by original volume. Or you can represent it by calculus, dV by V. D capital V means change in volume divided by V means original volume. So these are the notations that we use. So this is volume strain. Tell me, if I take a solid object, any solid object, and if I apply force, generally volume may change, but very rare. Volume mainly changes when gases are concerned. And you remember your earlier study about propagation of longitudinal waves, because we are having this in class 11 syllabus, longitudinal and transverse waves again. So when longitudinal waves propagate, they take the help of compression and rarefaction. Relaxation or rarefaction. Yeah. Compression and rarefaction. So as I am taking the class, speaking something, the microphone is catching it. So it reaches the microphone like this. The air in between us is having a compression and rarefaction. Compression and rarefaction. So what changes here? Volume. What is the medium here? Air. So generally for gases, we consider this. That's why I took the example of balloon. Why not liquid? Well, liquid, it may happen, but liquids, for ideal liquids are incompressible. Remember this, you would be having this effect when you study Bernoulli's theorem, fluid mechanics. Ideal liquids are incompressible. That means you cannot compress a liquid to shrink its volume. Infinite force will be required to shrink its volume. Ideal liquid, but no one is ideal and no liquid is ideal. That means, yeah, their volume changes, but very small. Remember that, negligible change. But major changes are observed for gases. Solids also exhibit some property. Anyway, no problem. So change in volume by original volume, that is volume strain. And we will be coming to this shape size change. I have a question. Yeah. Ask me. Yes, sir. So for length, for the longitudinal change, Strain, yeah. we wrote delta capital L by L, but here delta L is capital L minus small l because this is elongating. So how do we write delta L? Delta L is this from this picture. See from this picture. So it would be helpful for you to understand this. Delta L is capital L
was initial length and small l. Okay, I can write this like this. Delta L is capital L plus small l minus capital L. So delta L means final length minus initial length. That means what? The small l only here. This is delta L actually. Okay, sir, I understood. This is, okay, thank you. So this is delta L. Only this part, this part. The elongation took place, that is delta L. Delta V, only the volume that changed. Okay, the next part. Next part is that, let us go to shear strain. Shear strain happens when shape or size changes. That means you cannot change the volume now. That means another point for here, for this is volume should remain constant. Volume should not change. Another part for this, the differences with other kinds of strains. Actually, in higher level, we generally categorize strain into two parts only. Part one is normal strain and part two is shear strain. In normal strain, it may be longitudinal, it may be volumetric. In both the cases, there is one thing common, that the forces applied are perpendicular to the strain. That means, remember, when this was a rod, we applied force like this. See, this force or this force, this is perpendicular to this surface. Perpendicular to this surface. So this force is called normal. Normal means perpendicular, and sometimes in books you can see this symbol, F perpendicular symbol. That means the force is applied normally, perpendicularly to the surface. Here also, remember this, I had drawn forces like this, and also remember your earlier study, that is, if we draw a tangent, then this force applied is perpendicular to the surface. Surface here means the tangent. So the force applied is perpendicular to the surface. That's why these forces are called normal force, that is perpendicular force. So the stress developed due to these forces, are called what stress? Normal stress. Normal means perpendicular. But this is different from them in terms of the direction of force that is applied. Force is applied tangentially, not normally and perpendicularly. That means, suppose if I take a box, then if I apply a force on this block or box, keeping this lower part fixed, tangentially, tangent to the upper surface, if I apply a force like this, tangent to the upper surface, don't understand this. Tangent to the upper surface means if I draw it in 3D, this is the topmost surface, that is ceiling of this block. And if the force applied on this is in this direction,
माथा को छू के निकल जाएगा. It will just touch this upper surface, but the lower part is fixed. This is fixed. भाई मैच बॉक्स ले लो. टेक अ मैच बॉक्स. मैच बॉक्स का अंदर वाला सारे तीलियां निकाल दो. And then hold the lower surface like this and push the upper surface like this. Tangentially apply the force on its top. Then what do you see? This matchbox like this matchbox becomes like this. Keeping the volume same, this will tilt in the forward direction. So this force F is tangential along the tangent to this block. That's why this force sometimes called written like this. F11 नहीं है, ये F parallel है. Parallel to what? Parallel to this ceiling, this surface. That's why this stress, this strain is called shear strain. Strain माने change. किसका change हो रहा है? Shape size का. कैसे? भाई shape तो ऐसा था, ये अब जैसे ये force देंगे कैसे change हो जाएगा? It will tilt forward. सीधा था, ऐसा हो जाएगा. So this is the angle of shearing. भाई shearing का simple माने क्या है? Shearing का simple माने काटना. Scissor is a shearing machine. Yes. क्यों? काटने का मतलब क्या होता है? You are separating two surfaces one from the other. That is called shearing. When two surfaces, एक का रेस्पेक्ट में दूसरा का रिलेटिव मोशन होता है, एक फिक्स्ड दूसरा मूविंग, देन वी कॉल इट इज हैविंग अ शियर. और उसके लिए फोर्स कैसा चाहिए? द फोर्स रिक्वायर्ड इज टेंजेंशियल टू वन सरफेस विथ रेस्पेक्ट टू द अदर, सो दैट इट कैन स्लाइड, ट्विस्ट, tilt with respect to the other surface. That is called shearing. So, in case of this, how do we measure this shear? The measurement of this shearing is given by this. इस पेज में थोड़ा जगह है, I'm writing it here. हाँ, क्योंकि इस पेज में थोड़ा जगह है, I'm writing it here. Shearing is measured by F by A फिर से, लेकिन यहाँ पे देखने में सुविधा होगा. This area of the छत का जो एरिया है, that means this top surface of this block, that has an area A, and the force applied tangentially to that surface is F. So shear stress, shear stress is given by this force by area. And what about shear strain? What about shear strain? Shear strain is given by, from that picture, again I am drawing it here. So this was the initial position, and finally this surface यहाँ पे आ गया और ये surface tilt करके यहाँ पे आ गया. तो ये surfaces ऐसे tilt हो गया. Angle of tilt कितना? थीटा. Now think of these things. I am writing this with names. नाम लिख रहा हूँ इसका. देखो शुरू में ना ये PQRS था मान लो, शुरू में RS तो सेम ही जगह पे है, सिर्फ P has moved to P dash and Q has moved to Q dash or Q prime. So what has been the movement? This movement has been say X. That means ये साइड X इधर टिल्ट हो गया ऐसे, तो इधर कितना चला गया वो सरफेस? X. That means this is the displacement of the surface. कितना? X आगे चला गया. That means ये भी X ही जाएगा, Q भी X आगे चला जाएगा. And what is the distance between the two surfaces? Let us call it L, length. Distance between the two surfaces, that is L. और एक सरफेस का रेस्पेक्ट में दूसरा सरफेस कितना आगे चला गया? आगे, that is X. So ये हो जाएगा ना tan theta. The measure of shear strain is given by the tangent of that angle, tan theta, which is nothing but X by L. Now, if the angle of shear is small, then we can write theta. Tan theta nearly becomes equal to theta. Theta equals to X by L. This is shear strain, that is theta, in terms of theta. And if you take theta only,
देन रिमेंबर, मैं तो बोला था थीटा पेरेंट्स का साथ रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, तब डिग्री लेना। और थीटा अगर अकेला है देन थीटा मस्ट बी टेकन इन टर्म्स ऑफ रेडियन। सो थीटा का यूनिट होगा रेडियन। एनीवे, सो दिस इज गिवन बाय x बाय L, that would be this x by L, this would be the shear strain. This is the formula, x by L. From figure we can understand what is x. We can understand the distance between the two surfaces which are having shear is L. So that simple it is, x by L. So these are the three kinds of strains. A stress to wahi tha F by A we learned earlier also. It is nothing different. Only I have written this for only one purpose. Let us understand how force is tangential to the surface and what area we should consider. Top surface, not this surface. ये surface का नहीं है. Neither this surface. ये surfaces का नहीं है. Area लेना है यहाँ पे, जहाँ पे force tangentially act कर रहा है. So that's it. चलो, we have learned three types of strains and we learned stress also. Now depending on these, we found that stress and strain have a relation, and that is given by Hooke's law. Within elastic limit, start with this thing, otherwise student forget this. So it is a lengthy law, huh? Please keep on writing with me. Within elastic limit, what is elastic limit? I am explaining. Within elastic limit, stress and strain, जल्दी लिखो, बहुत लंबा लॉ है, लिखते रहो. Within elastic limit, stress and strain are proportional and मत लिखना, and मैं ऐसे बोल रहा हूं, and फुल स्टॉप दे देना, बस खत्म हो गया ये. एंड बोल के कुछ नहीं है, एंड फुल स्टॉप, दैट इज यही लॉ है. वो तो मैं मजाक कर रहा था. विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल. नीचे लिखो, देयरफॉर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. मोर द स्ट्रेस मोर द स्ट्रेन. हाँ, दैट मीन्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन within elastic limit. I told you, I'll explain it later. I told you, just right now. I'm explaining that, don't worry. So within elastic limit, stress and strain are proportional. That means stress proportional to strain. Okay. So if stress is proportional to strain, if A is proportional to B, then A equals to constant into B. That means A by B equals to constant. Just like that, stress by strain equals to constant. That means if you make the stress double, the strain will also become double. That is the meaning of this. The ratio bears a constant value. Okay, now this constant has three types of values. Three types of means if you change the length, then this constant actually called E. Write it here, E. This constant is called E. E is called coefficient of elasticity. Right by the side of E, coefficient of elasticity. E is called coefficient of elasticity. This coefficient of elasticity, coefficient माने क्या है? नंबर है. Elasticity, elastic property का. तो वो नंबर तो भाई डिपेंड करेगा वो कैसा इलास्टिसिटी देखने जा रहे हैं हम लोग. कैसे इलास्टिसिटी कैसा मीन्स वेदर यू आर चेंजिंग द लेंथ और यू आर चेंजिंग द वॉल्यूम.
or you are changing the shape size. That means मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ, if we change the length of an object, then the ratio of stress and strain will be called y. If we are going to change the volume of an object, then the ratio of stress and strain will be called bulk modulus. That will be called bulk modulus. That's why I have written B, bulk modulus. And if we are changing shape or size of an object, then the same ratio of stress and strain is called modulus of rigidity. When shape or size are going to be changed. So when these things come to play as a representative of E, those are written in the brackets. Now what are the names? मैं सिंपल करके बोलूं तो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ई का 3 छोटे छोटे बच्चे हैं. सबसे छोटे जो है, सबसे यंग जो है, उनका नाम क्या है? यंग मॉड्यूलस. जो थोड़ा बड़े हो गए, बड़े माने बी फॉर बड़े, उनका नाम होगा बल्क मॉड्यूलस. एंड इफ द शेप और साइज चेंजेस, तब उसको बोलेंगे मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. सो शेप साइज चेंजेस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. भाई सिंपल माने बता रहा हूं, ये मैं टॉवेल ले लिया, एक हाथ में था साइड में, टॉवेल लेके मैं ऐसा कर रहा हूं, लो ऐसा कर रहा हूं, ऐसा. तो इसमें मैं क्या चेंज कर दिया? टॉवेल का वॉल्यूम चेंज हो गया क्या? टोटल वॉल्यूम ऑफ द टॉवेल जितना था तो उतना ही रहा. तो क्या चेंज कर दिया मैं? शेप साइज. यस, शेप चेंज हो गया बाय ट्विस्टिंग इट. तो शेप अगर चेंज कर दिया तो ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी, इफ आई विथड्रॉ द डिफॉर्मिंग फोर्स, हाथ से जो डिफॉर्मिंग फोर्स दे रहा हूं इसको अगर हटा लूंगा, इट इज बैक ड्यू टू इलास्टिक प्रॉपर्टीज. तो इसका इंटरनल फोर्स जिसका मैं बात कर रहा था, दैट जनरेटेड डेवलप्ड विद इन इट, और वो इंटरनल फोर्स इसको बैक करके लाया टू अनस्ट्रेन्ड कंडीशंस. So this is elasticity, and in this case, as the shape size changes, what property should we consider? Modulus of rigidity. और कैसे मिलेगा ये? By dividing stress and strain. बोल सकते हो ये stress का नाम क्या होगा that I am producing here? ये कौन सा stress है? Out of the three? Shear stress. Very good, very good. That is, yes, shear stress. So this is shear stress. And कौन सा strain produce हो रहा है? Shear strain. Shear strain. Yes. देख बे, how I am applying the force. देखो इसको, ये व्यू देखो इसका, फ्रंट व्यू. उधर से देखो इसको, ऐसे मैं फोर्स दे रहा हूं इसका ऊपर. कैसे? ये हाथ को फिक्स रखा और ये हाथ से फोर्स दे रहा हूं मैं, ऐसे ऐसे. मेरा फिंगर को देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऐसे. देखे तो इसको. अब देखो इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे. दिस वाज द सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस टॉवल दैट आई वाज शोइंग हियर, लाइक दिस. और यहां पे मैं फिंगर से ऐसे फोर्स दे रहा था, ऐसे दे रहा था. अरे ये फोर्स क्या सर्कल का साथ परपेंडिकुलर है कि टेंजेंट है? दैट्स व्हाई, दैट इज अंडरस्टैंडिंग. तो टेंजेंशियल फोर्स कब लगता है? व्हेन वी प्रोड्यूस शियर. यहां पे वही पिक्चर ड्रॉ किया हुआ था, बस ये बुक में है बुकिश, और ये जो है नॉन बुकिश है, टॉवेलिश. बाकी तो सब सिंपल है. तो दिस इजी इट इज. सो आउट ऑफ दिस थ्री कॉन्स्टेंट्स, Young's constant, bulk modulus, and modulus of rigidity, let us understand Young's modulus first. But before that, I have to tell you something more. I just keep it right now noted. Later when we would be doing heat, thermodynamics or sound, in both the cases, I'll explain it. That is what. There are two more. Two different types of coefficient of elasticities. One coefficient of elasticity is called, when temperature does not change, that is called isothermal.
It is called isothermal. And another type of coefficient of elasticity exists, that is E adiabatic. ए डायबिटिक मत लिखना इसको, एडियाबेटिक ही पढ़ना इसको. एनीवे, तो ई एडियाबेटिक and E isothermal. So these two types of coefficient of elasticities are there. You may write here, this is equal to P. P means pressure. And adiabatic coefficient of elasticity, that is given by gamma times P. Gamma is a constant. Later I told you, I'll explain it later. Gamma is the ratio of specific heat of a gas. In chemistry also you will be doing this. The ratio of specific heat of a gas at constant pressure to the specific heat capacity of a gas at constant volume. This ratio is called gamma. Anyway, so isothermal and adiabatic, these two types of coefficient of elasticities also exist. And थोड़ा सा याद करके देखो, Cp by Cv, no, maybe you haven't done this, maybe. Cp by Cv जो गामा होता है ना, that is greater than 1 होता है हमेशा, गामा का वैल्यू. और मे बी यू हैव डन दिस. एनीवे, अभी कर लेते हैं. गामा का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है. तो बताओ तुम, ये दोनों में रिलेशन क्या आएगा? ई आइसोथर्मल और ई एडियाबेटिक, कौन ग्रेटर कौन लेस? ये बीच में क्या लिखूं मैं? विच साइन आई हैव टू पुट हियर? वेरी गुड, वेरी गुड. ई एडियाबेटिक इज ग्रेटर देन ई आइसोथर्मल. कंपीटिटिव एग्जाम्स में भी आया हुआ है क्वेश्चन. एडियाबेटिक क्यों? मतलब मान लो कुछ समझ में ही आया नहीं, क्या एडियाबेटिक क्या आइसोथर्मल, विल बी डूइंग इट लेटर. पर इतना तो समझ में आ रहा है, इसमें गामा टाइम से प्रेशर करो, ये सिर्फ प्रेशर है. दैट्स व्हाई इट इज लाइक दिस, आइसोथर्मल एडियाबेटिक. अब बाय द वे देखो, बाय द वे, अगर ऐसा भी नहीं कि भाई बाद में सीखना है. इफ यू वांट आई कैन शो यू नाउ आल्सो. सिर्फ एक चीज सोच लो, इफ यू कैन टेल मी आई विल शो दैट. अगर ये मुझे बताना नहीं पड़ता तो मैं वो बताऊंगा तुमको. चलो, तो बल्क मॉड्यूलस लिखा मैं बी, तो कोई भी मॉड्यूलस लिख दो, है तो ई ही. ई का ही तो 3 छोटे छोटे बच्चे थे. कौन? यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी. उसमें से आई हैव रिटन बल्क मॉड्यूलस बी. तो होगा तो वही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, होगा तो वही स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. चलो हो गया. नाउ व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन? भाई काइंड का क्या है? स्ट्रेस माने फोर्स बाय एरिया. हाँ, स्ट्रेन का एक काइंड होता था. स्ट्रेन का V बाय V, V बाय V. एक चीज बता दो, ये जो पेन है ना, ये पेन का ऊपर मैं फोर्स दे रहा हूं, इसका कुछ माने निकलता है. फोर्स दे रहा हूं, माने निकलता है. इस पेन का ऊपर मैं प्रेशर डाल दिया और पेन तुरंत पतला होकर ऐसा पतला तार बन गया, इसका माने नहीं है. हजम नहीं हो रहा बात. क्यों? क्योंकि ऑन सॉलिड्स फोर्स अप्लाइड हैज सम मीनिंग. ऑन सॉलिड्स प्रेशर अप्लाइड उतना अच्छा नहीं लगता है. दैट मीन्स ऑन गैसेस, लिक्विड्स, प्रेशर अप्लाइड बेटर है देन फोर्स अप्लाइड. ये यहां पे हवा है, एयर है, यहां पे मैं फोर्स अप्लाई कर दिया, लो अब ये एयर रोने लगा, ऐसा होगा? नहीं होगा. क्यों? बिकॉज एयर इज अ गैस. और गैस रोता नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं. बिकॉज गैस हैज मोर रिलेशन विथ प्रेशर देन फोर्स. अब ये चीज बोल दो, फोर्स बाय एरिया को प्रेशर बोल सकते हैं ना. फोर्स बाय एरिया, दैट वाज स्ट्रेस. सो स्ट्रेस इज वन काइंड ऑफ प्रेशर ऑल्सो. So stress is one kind of pressure. So we can write it delta P, that is change in pressure, divided by, माने force by area को pressure बोल दिया, divided by small v by capital V, that is change in volume by original volume. Volume strain और वो stress. यहाँ पे एक चीज बोलना है अनुपम. नाउ यू कैन सी दिस. नाउ इफ वी वांट टू राइट प्रेशर, चेंज इन प्रेशर एज dp,
And if we write this in calculus, I had shown you how to write this in calculus. This is dV, change in volume, divided by capital V, original volume. Now we will put a minus sign. This will bear some meaning. What meaning I am telling you? If this was a balloon and we were applying force and its area A, that means pressure, force by area, dP. We are changing its volume by applying pressure. So if dP increases pressure, its volume should increase or decrease? Its volume should decrease. So if one quantity increases in calculus and the other decreases, we put a minus sign. So B, that is bulk modulus, equals to minus dP by dV by V. उतना अच्छा नहीं लग रहा सब क्या dP dV by V, ये तो अच्छा था. फोर्स बाय एरिया हमारा स्ट्रेस हो गया, प्रेशर, और चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये अच्छा था. ये कहाँ से क्या आ गया? कोई बात नहीं, चलो तो ये तो किए ही हो अभी तक. प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट. हाँ, दिस वन है जे, देखो जो सुनो, ये तो किए हो. पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ में क्या सेम रहता है? टेम्परेचर. सो टेम्परेचर अगर सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसको ऐसे बोल सकते हैं आइसो रहता है. आइसो माने क्या? सेम. थर्मल, थर्म माने तो हीट होता था, क्लास 9-10 में पढ़े थे तो. सो आइसोथर्मल, इसका क्या मान होता है? टेम्परेचर सेम. ऐसा प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस, जहां पे टेम्परेचर सेम होगा. ऐसा कौन सा प्रोसेस है? तो पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है तब. ओके, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट. चलो इसको डिफरेंशिएट करता हूं. डू यू रिमेंबर यूवी मेथड? वीडियो डाला हुआ था एट द बिगिनिंग ऑफ योर क्लास 11, उसलिए ये सब सिखाए थे. यूवी मेथड, व्हेन बोथ द थिंग्स आर वेरिएबल, देन हाउ टू डिफरेंशिएट दैट. इसको डिफरेंशिएट करना चाहता हूं. हाउ टू डिफरेंशिएट दैट? प्रेशर को छोड़ देंगे पहले एंड देन वी विल डिफरेंशिएट वॉल्यूम. कितना हो गया? डीवी प्लस, अब भी को छोड़ दो. छोड़ दिया, देखो कितना खुश नजर आ रहा है. देन अब भी को डिफरेंशिएट करो, क्या हो जाएगा? डीपी इक्वल्स टू, ये बोल सकते हो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना है. अगर ये बोल दिए सर 0. गुड गुड. अगर ये बोल दिए तो नॉर्मल सी बात है, उसलिए बोल रहा था. एनीवे 0. सो दिस इज 0. फ्रॉम दिस पी डीवी इक्वल्स टू माइनस वी डीपी. डीपी और डीवी का माने समझ रहे हो तो डीवी माने है चेंज इन वॉल्यूम, डीपी माने चेंज इन प्रेशर. तो यहां से हम लोगों को यह निकालना है क्या? पी. पी इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस वी डीपी डिवाइडेड बाय ये डीवी जो है ना नीचे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? डीवी. नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है. क्यों? इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि ये अगर ऐसा होता तो अच्छा होता. देखो तो कैसा होता? ये ऐसा होता. कैसे? डीपी बोल रहा है मुझे ना टॉप फ्लोर में अकेले रहना है, मैं किसी का साथ शेयर नहीं करना चाहता हूं टॉप फ्लोर. तो ठीक है, टॉप फ्लोर में डीपी रहा. तो डीवी बुला लिया भी को कि भी तुम मेरे पास आ जा. तो भी आ गया डीवी का पास. कैसे? ऐसे. कैन वी राइट दिस लाइक दिस? प्रोसेस करो ब्रेन में इसको. मैं ये बोल रहा हूं दोज हु हैव अ लिटिल डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूं 5x by y लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x डिवाइडेड बाय y by 5? बात तो एक ही है ना. 5 विल जंप अप कि मुझे नहीं नीचे नहीं रहना बोल के ऊपर उठ जाएगा. मैं जोर करके टांग के नीचे रख के. So now you understand this? So same thing is done here. ठीक है. अरे ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है. कौन है भाई? Who is this one? Yes, this is bulk modulus. Stress, strain, ये तो किए.
means bulk modulus in case of isothermal process becomes equal to pressure. वही तो लिखा था यहाँ पे, ये लिखा कहाँ पे, ये क्या लिखा? तो फिजिक्स मेमोराइज करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। बाकी क्या है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स जो कि टाइम का साथ साथ होगा, है ना, तो इसलिए थोड़ा सा बोला कि इंफॉर्मेशन थोड़ा लिख के रखो। और एडियाबेटिक में सिमिलरली आई कैन शो यू दैट इट विल बिकम इक्वल टू गामा। ये जो मैं बोलता हूँ कि आई कैन शो यू, आई विल शो यू लेटर, ओके, लेटर शो ना करके अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन क्या स्टूडेंट्स को ही ज्यादा दिक्कत होता है और कुछ नहीं। देखे ना ये कि ये माहौल कैसे गंभीर हो गया अच्छा चल रहा था और गंभीर हो जाएगा, देखोगे ना, अभी मत देखो क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस वी हैवंट डन इट येट, बाद में करेंगे उसको, ठीक है। चलो बल्क मॉड्यूलस का ये हुआ। अब ना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी का, बल्क मॉड्यूलस का, यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला बनाते हैं। कैसे? चलो तो ये मेरे साथ साथ शांति से ड्रॉ करो तो इसको। चलो बहुत हो गया सीखना लिखना, अब साम बनाना है, साम न्यूमेरिकल बनाना है। चलो लेट अस बी रेडी। मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी का हेल्प ले लेता हूँ। भाई टेक्नोलॉजी आ जाओ। ये रॉड length of this is L. Now after applying a stretching force, it elongates by a length small l, elongates by a length small l. ये जो इसका elongation हुआ small l, इसी का माने है डेल्टा l, सेम थिंग, स्मॉल l माने डेल्टा। ओके, सो ये जो तार है ना, तार का जो एरिया है, एरिया ए, ये एरिया को हम लोग बोलेंगे ए। ए मींस एरिया। देन यंग्स मॉड्यूलस बाय है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेनिंग, स्ट्रेस बाय स्ट्रेनिंग तो है वाई माने कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का यंगेस्ट वर्जन। स्ट्रेस फोर्स कितना F, एरिया कितना A, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। इधर यू कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला से 70% सम इसी के ऊपर बेस करके मिलेगा, और यू कैन चेंज इट टू दिस थिंग। सेम ही है, देखो मैं सिर्फ उसको उल्टा कर दिया इसको। व्हाई? बिकॉज ऊपर में दोनों ही देखो कैपिटल लेटर है टू रिमेंबर, और नीचे दोनों ही स्मॉल लेटर है, हेल्प करेगा FL by AL। और माय सजेशन इज जब एग्जाम में इसको करोगे, न्यूमेरिकल बनाओगे, तब क्या करना, जो पूछेगा द क्वांटिटी दैट इज आस्क्ड ब्रिंग इट टू द लेफ्ट साइड फर्स्ट, देन पुट द वैल्यूज। नहीं तो वैल्यूज का इधर उधर करने जाओगे 10 टू द पावर प्लस माइनस, थोड़ा मे बी सम मिस्टेक्स मे बी मेट। तो उसलिए जो चाहिए उसको लेफ्ट साइड में ला। जैसे कि मान लो यहाँ पे तुमको चाहिए क्वाइट अ फ्यू क्वेश्चंस दे आस्क फॉर फाइंडिंग इलोंगेशन ऑफ द लेंथ, कि वो लिफ्ट का जो तार था ना वो कितना बढ़ जाएगा नीचे। तो इलोंगेशन को लेफ्ट साइड में लाएंगे अगर, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ऊपर में तो FL डिवाइडेड बाय AY आ जाएगा, y नीचे चला जाएगा, स्मॉल l ऊपर, लाइक दिस। जो भी पूछेगा लेफ्ट साइड का। सो दिस इज वन पॉइंट, दैट इज y का फॉर्मूला बन विल बी डूइंग न्यूमेरिकल। नेक्स्ट पार्ट को वही वॉल्यूम अगर चेंज होगा तो बल्क मॉड्यूलस अभी तो बना है, माइनस dp चेंज इन प्रेशर बाय dv बाय v, दैट मींस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये फॉर्मूला इसका क्या डिटेल्स में किया। एंड तीसरा कौन है? तीसरा था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, ऑलरेडी कर चुके हैं बट वी आर येट टू रीच द लास्ट लाइन। कैसे? फोर्स है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही, फोर्स बाय एरिया, और स्ट्रेन कितना था इसका, स्ट्रेन याद आ रहा है, tan थीटा किए थे। ये फोर्स बाय एरिया tan थीटा का बदले में वी कैन राइट थीटा हियर।
क्यों? इफ थीटा इज स्मॉल, जनरली स्मॉल होता है। मैं तो टॉवेल को ऐसे ट्विस्ट किया था, इफ यू ट्विस्ट एन अ स्टील वायर रोप लाइक दिस, तो कितना ट्विस्ट कर दोगे? 300-400 डिग्री घुमा दोगे क्या? नहीं, मे बी हाफ डिग्री होगा वो, वेरी स्मॉल एंगल। दैट्स व्हाई f by a theta, tan theta becomes theta और a नीचे आ गया, so eta equals to f by a theta। एक चीज याद है तो, theta must be taken in terms of radians not degrees। यहाँ पे भी मिस्टेक होता है, मैं अभी बोला थीटा हाफ डिग्री होता है जनरली, जनरली नहीं, मतलब फॉर एन एग्जांपल हाफ डिग्री, तो क्या थीटा को हाफ बैठा दूंगा? नहीं, इफ थीटा इज हाफ डिग्री देन उसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एनीवे, तो दीज आर द थ्री फॉर्मूलाज फॉर दिस चैप्टर का। वन ऑफ द मेजर फॉर्मूलाज ये तीनों है, तीनों का एक एक सम अभी बनाते हैं। चलो, तीनों का एक एक सम। Otherwise, we are doing good। एक बार देख लो, we are doing good। Otherwise, पहले इसका बनाता हूँ। चलो, next part। चलो, कॉपी में नहीं रेडी, कॉपी पेन चंगा तो सब चंगा तो एकदम चंगा दो, कुछ नहीं है। हाँ, गुड। सामने एग्जाम आ रहा है, you are young people, you can do anything। चलो, first thing, let us do this। This is a wire। अरे चलो लिफ्ट का ही वायर ले लेता हूँ। लिफ्ट का तार है, तो 6 तल्ला बिल्डिंग है, मान लो 6 तल्ला बिल्डिंग में लिफ्ट का तार मोटा मोटी अगर 4 मीटर करके भी ले लिया एक एक फ्लोर, तो 24 मीटर्स, तो चलो इसको 30 मीटर्स ले लेता हूँ। सो अ स्टील वायर रोप हैविंग अ लेंथ ऑफ 30 मीटर्स। सो ये 30 मीटर कौन है? कैपिटल। इसका साथ लगा दिया लिफ्ट को, a lift, but remember this rope is massless और harmless भी है because mass हो जाने से थोड़ा दिक्कत हो जाती है। Otherwise this is massless, no mass। इसका मास लेने नहीं लेना है, just consider its length। और इसका मास लेना लिफ्ट का, सपोज कि मोटा मोटी 450 किलो, 500 किलो, 1000 किलो तक होता है। चलो 1000 किलो ले लेता हूँ। 1000 kg lift including the passengers। और ये एक तार है जिसका लेंथ दिया हुआ है, इसका यंग्स मॉड्यूलस लिख लो। मान लो कि स्टील वायर रोप है और स्टील का मोटा मोटी यंग्स मॉड्यूलस ऐसा कुछ ले लो, 2 × 10⁻²। यूनिट याद है किसी को? स्ट्रेस का यूनिट था फोर्स बाय एरिया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन नो यूनिट। ये मैं डांस स्टाइल नहीं दिखा रहा हूं, मैं ऐसे बता रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू टेल दिस। सो स्ट्रेस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन नो यूनिट, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक, सो y is given। The only thing that needs to be given is the area of cross section of this rope। Suppose कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख रहे हो, डेटा देख रहे हो? Maybe you need to convert these into a single unit SI। So question क्या है? Question है कि what is the elongation of this rope? M 1000 को मैं ऐसे लिखता हूं। G मान लो 10 ले लेता है, अगर दिया हुआ रहता 9.8 तो ठीक है। mg हो गया f into कैपिटल 30 मीटर, ओके, डिवाइड बाय एरिया दिया तो हुआ है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर बनानी है, क्या करूं? -4। 1 मीटर माने 1 सेंटीमीटर माने 1/100 मीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दोगे 1/100 1/100 10⁻⁴। तो चलो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना हो गया एरिया, इनटू y का वैल्यू कितना दिया हुआ था? ये 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²। Now if we calculate this, कितना आ रहा है बताओ तो? मैंने इसको -6 meters। हाँ, how much? 5 × 10⁻⁻6 meters। 5 × 10⁻⁴। 1.5 × 10⁻⁴। Sir, 1.5 × 10⁻⁴।
3/2 into 10 to the power 5. So that will leave you 1.5 into 10 to the power minus 4. Oh, 1.5, yeah. 1.5 into 10 to the power minus 4. 1.5 into 10 to the power minus 4. Yes, sir. This much, this much. 15 into yes, sir. 15 into 10 to the minus 5 meter. Okay, yeah. That is also right. So this much unit क्या होगा? Small l. Unit क्या होगा small l? Meter. What's the meters? Meter. Smaller length. This would be meter only. ठीक. दूसरा एक आइडिया सिखाना चाहता हूँ, सुनो. जैसे मैं बोला ना, this is a wire of area A, and now this has mass capital L, its length capital L, its modulus of elasticity y. बाप रे, कितना कुछ आ गया. कितना कुछ क्या है? 4 क्वांटिटी तो है. राइट साइड में तो 4 ही था. FL by AY, FL by AL, y equals to. सब कुछ दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है फिर? क्वेश्चन फिर से वही है. व्हाट इज द इलोंगेशन ऑफ दिस रोप? इलोंगेशन ऑफ दिस रोप कितना बढ़ जाएगा ये? Who says the answer? We know y equals to, आंसर बोल सकते हो if someone has got it. FL by AL. तो मैं बोला था जो चाहिए. Sir. हाँ बोलो. Sir, ML by Y. MGL by Y. No, but M is MGL by Y. MGL by MGL by A. Y. AY. AY. MGL by AY. Okay. So small l equals to, पहले small l को इस साइड में लेके जाता हूँ. FL को रहने देते हैं उधर. Divided by AY. Now let us put the value of, ये तो फॉर्मूला आ गया. Let us put the values here. तो देखो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. क्यों? लाल अक्षरों से लिखना चाहता हूँ. क्या? कि ये जो L है ना, ये L by 2 लेना. Center of mass. Yes. आंसर वही है, लिखो पहले. फिर मैं I am explaining this. FL divided by 2AY. Small l equals to. आंसर को लिखो. I am explaining this. Explaining this. Don't worry. आंसर लिखना हो गया. चलो इसमें आ जाओ जल्दी. इसमें आ जाओ जल्दी. Draw a string. And then देखो ये क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं ना, कंसेप्ट, हाउ टू डू दैट. और जितना आप घर में प्रैक्टिस करोगे यू लर्न मोर एंड मोर एंड बिकम कॉन्फिडेंट. तो यहाँ पे कंसेप्ट में सिखा रहा हूँ. ये रोप ड्रॉ करो, ये रोप ड्रॉ करो, और ये रोप भी ड्रॉ कर लो. सब टेढ़ा क्यों हो रहा पता नहीं. मैं तो टेढ़ा नहीं हूँ, पिक्चर टेढ़ा क्यों हो रहा. एनीवे होता है. चलो let us call this thread to be 1, this thread to be 2, and this thread to be 3. These pictures are not meant to feel you uncomfortable, make you feel uncomfortable. To make you feel uncomfortable नहीं है ये to make you feel confident है, क्योंकि आइडिया सीखो यहाँ से. कैसे? देखो, if this mass is M 1, 2 का साथ लगा हुआ है M2, 3 का साथ लगा हुआ है M3. Now elongation of the mass 3 of the wire 3, ये थर्ड वायर है. ये इसका elongation निकालना चाहता है. आइडिया को समझो. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. आइडिया को समझो कैसे. जिसका इलोंगेशन निकालना, स्टार्ट कहां से हो रहा है? यहां से. स्टार्ट यहां से हो रहा है, फिनिश कहां हो रहा है? यहां पे. तो बताओ ये थर्ड वायर जो है, थर्ड वायर, इसको कौन स्ट्रेच कर रहा है नीचे? इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स कौन है?
M3. M3. Yes, M3G. Yes, this is the concept कि जो पॉइंट का इलोंगेशन लेना है उसका नीचे जो मासेस या तो वेट्स कनेक्टेड है सिर्फ उसका वेट होगा फोर्स, ये जो वेट है वही होगा फोर्स एक्टिंग ऑन दिस मास, और वो कौन है? M3 का वेट। बाकी M2 और M1 तो ऊपर है, दैट मींस L3 इक्वल्स टू, देखो फार्मूला क्या था, FL by AY, इट वाज द फार्मूला। तो बस F माने यहां पे क्या लिख देंगे, M3G, ये हो गया F by एरिया A, और Y3, इसका Y मान लो Y3 है, मतलब सभी 3 करके है मान लो। बाकी आइडिया ये समझना कि कौन सा लेना है, 3, 2 ना 1, दैट इज द मेन आइडिया कि किसको लेना है। ओके, तो इसको भी A3 लिख दिए, सबको 3 लिख दिए, so that we can understand this is the elongation of the rope 3. Now elongation of the rope 2, फॉर्मूला वही बैठाएंगे इसका। हाँ बोलो। So the L. ओ हाँ L, हाँ ठीक बोलो, into L, तो ये into L3, you can write it L3, no problem, yes, right, in place of L write L3, okay. Now what should we write for L2, the elongation of this thread, L2, what forces are pulling? plus M2G. Yes, right, it is M3 plus M2, whatever appears below this will apply force on this। ये पॉइंट रस्सी 2 को टानेगा कौन, जो इसका नीचे है, नीचे कौन कौन है, दो जन है, M2 and M3, ओके, डिवाइडेड बाय A2 and Y2। सिमिलरली L1 कितना होगा, L1 M1 plus M2 plus G into L1 by A1 into Y1. वेरी गुड, टोटल मास तीनों ही इसका नीचे है, इसका नीचे है, बिकॉज यहां से ये इलोंगेट होना शुरू करेगा यहां से, तो दिस पार्ट इज द स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन दिस वायर, सो टोटल वेट इनटू G इनटू L1 डिवाइडेड बाय एरिया इनटू यंग्स मॉड्यूलस जो होगा सबको 1 1 कर दिया, बाकी दैट इज द लोड। ओके, अब बताओ तो इसका कितना होगा, Mass of responsibility. हाँ ठीक, मास ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सिखाया था न्यूटन्स लॉ। अच्छा, सिमिलरली इसका बताओ तो क्या होगा, एक तो आगे पे एक्स्ट्रा रखा मैंने, आधा, ओके, बोलो, यस सर। चलो नेक्स्ट पेज देखी तो, whether you can do this or not, this is mass capital M, this rope has mass small m, ये इसका भी mass है, अब it is having mass, so tell me what would be the ये पॉइंट जो है ना P, फाइंड, क्वेश्चन को लिखो, फाइंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट P। P पॉइंट कितना नीचे है, P पॉइंट कितना नीचे, सर पी का की मिड पॉइंट, ये x ऊपर है और टोटल लेंथ L, सर कैपिटल M प्लस स्मॉल m G डॉट लेंथ बाय 2 बाय A1। M plus mg into L minus x by A by. see
downward displacement. Who said L minus x? Sir, I said. Yes. Why will point P be displaced downwards? Because this part of the rope will get elongated. तो नीचे भी तो होगा ना, तो नीचे होगा तो उसलिए ये पार्ट नीचे जाएगा, नीचे जो होगा, अगर ये पॉइंट इलोंगेट करता है, दिस पॉइंट, तो ये पार्ट नीचे जाएगा, उसका साथ P का रिलेशन नहीं है. P will only go downwards if the part below P, इसका जो weight है वो टानेगा P को. The weight below P will pull P point downwards. और what increase in length will take place? P का ऊपर जो part है ना, this part will elongate. ऐसे तभी तो P point will come downwards. बोलो आइडिया क्लियर हो चुका? The point that moves downwards, the point that moves downward, तो क्या देख रहे हो यहां से? देखो ये P point downward जाएगा. अगर मेरा ऊपर वाला जो पार्ट है हाथ का, ये पार्ट हाथ का, ये अगर नीचे आएगा तब तो P point नीचे जाएगा. That means the upper part has to elongate. Then only P point will come downwards. और ये पार्ट का लेंथ कितना है? L minus x. So we have to basically find elongation of L minus x length of the rope. ये है concept part. Small l माने elongation of L minus x part of the rope. जितना होगा वही होगा आंसर. Now let us find that answer. चलो those who haven't tried it और tried it पर आंसर नहीं मैच किया, या तो tried it और आंसर भी मैच कर लिया. Let us all be equally happy. चलो, तो what would be that L? Small l. लिख रहा हूँ, small l equals to F force. Force तो मैं अभी दिखाया था कि उसका नीचे जो पार्ट होगा, नीचे downward, that part will pull this part. इसका नीचे टोटल जो लोड है, that is the deforming force on P or the length above it. ठीक है, चलिए ये पूरा पार्ट का लेंथ वेट कितना है? तो एक तो है भाई मास इंटू जी, mg कर देंगे, तो कैपिटल M का तो वेट है mg, प्लस ये पार्ट का भी तो वेट है, ये येलो पार्ट ऑफ द रोप. ये पार्ट का वेट कैसे मालूम करेंगे? यूनिटरी मेथड से. But this much length of a cloth that costs इतना रुपया, तो what would be the price of the cloth if we cut it short by this much length? तो यूनिटरी मेथड नहीं करते थे, तो यहाँ पे भी करना यूनिटरी मेथड. L लेंथ दिया हुआ है ना, देखो L लेंथ, इसका मास कितना दिया हुआ था? स्मॉल लेंथ. 1 लेंथ कितना मास होगा? स्मॉल m by l. तो इसका लेंथ कितना? येलो पार्ट का, इसका लेंथ कितना? x. सो x लेंथ का मास होगा, मैं इसका नीचे कर रहा हूं, इसका नीचे कर रहा हूं. सो x लेंथ का मास होगा m by l into x. दिस वुड बी द मास. तो मास अगर इतना है किसका? येलो पार्ट का, चले ये येलो पार्ट का वेट कितना होगा? येलो पार्ट का वेट होगा वही मास इनटू जी, तो स्मॉल m इनटू x बाय l इनटू g. ये हो गया टोटल वेट, दैट इज F. फार्मूला क्या करना है? स्मॉल l इक्वल्स टू FL बाय AY. ये हुआ F पार्ट से. कैसा F पार्ट? कैपिटल mg. ओके. हैंगिंग पार्ट ऑफ द रोप बिलो P, येलो कलर का, यूनिटरी मेथड करके निकाले. L लेंथ का m, 1 लेंथ का m by l, x लेंथ का m by l into x. बैठा दिए, हो गया टोटल वेट, टोटल लोड एट पॉइंट P यहाँ पे. सो L, दिस इज F.
into L माने the length of the initial length of the rope that is being elongated. वो कौन है? L minus x divided by क्या है? AY हो गया, यही है. This is the answer. You can maximum take G common and rest of the part is the answer. That is the answer. Now if you have understood this, this part is the explanation part why mass of that part of the rope is this much. Anyway, देखो last page में जाता हूँ. इसका भी last page. अब देखो बोल रहा है कि इसका elongation कितना होगा? इसका elongation होगा क्यों? Due to a stretching force F. F कितना है? F तो इसका mg है. तो let me put the value mg. मैं यहाँ पे सिर्फ F लिख के छोड़ दिया हूँ. तो यहाँ पे mg लिख रहा हूँ इसका. कैसा? आगे टेस्ट है. आ जाए कैपिटल mg. ये मैं कैपिटल mg लिख रहा हूँ. ये F का बदले में भी mg लिख. ठीक है? mg तो लिख दिया. तो वो mg कहाँ से है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी. वेट कहां से ऐड करता है? मिडिल पॉइंट. तो रेगुलर बॉडी के लिए वो मिडिल पॉइंट का नाम क्या देते हैं? वेट जहां से ऐड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से mg एक्ट करता है. ओके, अब बताओ तो. नाउ टेल मी व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ विल दिस mg फोर्स elongate? ये रस्सी का कौन सा हिस्सा, माना व्हाट पार्ट ऑफ द लेंथ, हाफ, 1/4, कंप्लीट लेंथ, किसको टान के ये elongate करेगा? इफ यू थिंक लाइक दिस. हां बोलो. L/2. Yes, this part only. रेगुलर पार्ट के लिए हाफ होता है ना CG. दैट मींस ये पार्ट का लेंथ तो L/2 है. समझ में आ रहा है? Because the force is acting from this point, we may assume तो elongation तो इस पॉइंट का ही होगा ना जो इसका ऊपर है. तो इसका ऊपर कितना पार्ट है? L/2. That's why this L/2 has been taken here. That's it. और कुछ नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वो 2 बैठाना है. That's it. चलो ये पार्ट हुआ. And this was the that page. Last page मैंने एटा पूछी ना तो this one. हाँ सर. Okay. ठीक है. चलो you have understood this. Now इसको देखता हूँ तो कौन करता है? एग्जाम. अब एग्जाम रिलेटेड सम्स. एग्जाम रिलेटेड सम ये करो तो. और ये मत बोलना अरे लो फिर से आ गया वो. कौन? अरे ये आता रहेगा, इससे दोस्ती कर लो. चलो एम हटाओ तो. बार बार ये एम देने से अच्छा नहीं लगता, स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं लगता है. ये 2 kg है, दिस इज से 4 kg. ये दो मासेस कनेक्टेड है. ये थ्रेड का साथ, ये थ्रेड का ना, थ्रेड का जो है एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया. यंग्स मॉड्यूलस वही स्टील का ले लो, नहीं तो ऐसा कर लो 10 to the power 11 y. यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इफ टोटल लेंथ ऑफ द वायर इज 10 मीटर, total length of the wire is 10 meter, what could be the elongation of this thread? ये thread का elongation कितना होगा? माने ये thread जो है ना, ये thread तो इसको ऊपर से पास किया, ये thread कितना elongate कर जाएगा? भारी भारी लोड हैंग कर दिया ना 2 kg और 4 kg. चलो फॉर्मूला करते हैं. फॉर्मूला तो ये बता, इलॉन्गेशन फिर से FL by AY हो गया. वैल्यू पुट करते हैं.
एफ माने तो अरे एफ लेके तो प्रॉब्लम है, बाकी सब तो बैठा रहते हैं यहाँ पे। क्यों? कैपिटल एल दिया हुआ है 10, एरिया चलो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 टू द -4 कर दो, मीटर स्क्वायर बन गया। ए हो गया, y भी दिया हुआ है 10 टू द पावर 11। तो क्या नहीं दिया हुआ है? The quantity that is not given is force, the force that stretches it. So, if there is a thread in a pulley block system, what force stretches the thread? What force acts in a thread? So tension. Yes, very good. Tension. So tension, and as this is a fixed pulley, tension on both the sides will be same. And if you remember or not, Bogish formula. Bogish formula. कितना आ रहा है? ये हम लोग किए थे the day when we did Attwood machine, that is pulley block system for the first time. तभी किए थे दो फॉर्मूला, acceleration given by m2 minus m1 by m2 plus m1 into g, tension given by 2 m1 m2 by m1 plus m2 into g. These were the two formulas. So actually 2 m1 m2 divided by m1 plus m2 into g, ये 2 कहाँ से आता है? This 2 applies here. 0.2664 meter. Oh, let us see that. देखो ये जो टेंशन T है, I am always against ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखने वाला चीजों को, ये बहुत अच्छा नहीं है। तो अच्छा क्या है? शॉर्टकट जोशी कहते हैं, किसी एक मास को ले लो। कौन सा? मान लो 4 केजी नीचे आ रहा है। स्टेप 1 एक्सीलरेशन फिक्स पुली के लिए, हेल्पिंग फोर्स माइनस ऑपोजिंग फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, 4 + 2 6, कितना आ गया ये? g/3। चलो एक्सीलरेशन निकल गया। then tension T for any mass, मान लो हम लोग ये 4 केजी का रस्सी का टेंशन निकालना चाहते हैं, इसका कैसे निकालेंगे? T इक्वल्स टू या तो R इक्वल्स टू m इंटू, मैं बोला था G प्लस या तो माइनस A होगा। तो ये 4 केजी के लिए क्या लिखूं? m इंटू G प्लस है ना, m इंटू G माइनस। ये शॉर्टकट रिवाइज कर रहा हूं एक्चुअली न्यूटन्स लॉज का, वो भी माइनस है। वेरी गुड, माइनस बिकॉज इट इज कमिंग डाउन बोला था, और जो ऊपर उठ रहे हैं उसके लिए प्लस। अगर तुम 2 केजी मास लोगे यही प्लस लिख देना, 4 केजी नीचे आ रहा है, नीचे माना माइनस, समझाया था? तो जस्ट राइट इट माइनस ही। तो बताओ ये कितना आ रहा है? m माने 4, g माइनस ये कितना आया? g/3, दैट मींस 2g/3, सो 2 4 are 8। तो कितना आ रहा बोलो तो? t इक्वल्स टू 8/3 into g। So tension T जो होता है, that is the force actually, that is the force। बैठा दे रहा हूँ अभी ये कैसे? ये तो 8/3 into g माने 10 हो गया ये, that is force। चलो फोर्स माने क्या बैठाना है पुली ब्लॉक सिस्टम में? टेंशन। Now let us see what value is coming here. 10 to the power का हिसाब पहले कर लो। 10 to the power 2.67 into 10 to the power -5. 10 to the power 2 or 4 minus 6. Yes, 10 to the power -5. That is right. And 8/3 माने? So 2.67. So 2.67. Very good. So this much meter. Next page. Suppose this is a sphere. So write कि on applying a pressure of 3 atmospheric
on a sphere it shows 0.01% shrink in volume. Find, let us do this, bulk modulus we know, the formula of bulk modulus. Same, stress by strain ही तो होना है. Stress माने change in pressure dP divided by dV by V. If you write calculus, put a minus sign, Anupam. And then let us find this. Now dP has been 3 atmospheric. 3 atmospheric. Never use atmospheric pressure in any of the formulas you write in physics. Then 1 atmospheric pressure means 10 to the power 5 Newton per meter square. Remember this. 1 atmospheric pressure 10 to the power 5 Newton per meter square SI unit. Same as Pascal. Same. So 3 atmospheric pressure converted to 3 into 10 to the power 5 Newton per meter square. And then dV, change in volume. Sir, Huh? answer ki 3 into 10 to the power 9. 3 10 to the power 9. Let us see that. Yes. Right. 3 10 to the power 9. Because this percentage is given. Now once I had told you, probably the last class or some other classes, that dx by x into 100 is the percentage change in x. dv by v into 100 is percentage change in v. This is the meaning. Who are using calculus for the, newly, then these are the meanings. Any d of a quantity by that quantity means into 100 means percentage change. So, if that is so, then let us do this. dv by v, 3 10 to the power 10 to the power see, this is 0.01% means परसेंट को अगर फ्रैक्शन बनाना है, डेसिमल बनाना है, कैसे बनाते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं. इतना परसेंट ऑफ समथिंग, देन वी मल्टीप्लाई इट बाय दिस. बट सपोज आई एम राइटिंग 0.6, दैट मीन्स व्हाट? 0.60. इसका मतलब क्या होता है? 60%. तो सोचो तो 60% मैंने फ्रैक्शन में या तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं? 60 by 100, दैट इज 0.60. हाँ, देख रहे हो? तो जो भूल करना है ना, अभी कर लो, नो प्रॉब्लम, अभी कर लो भूल. लर्न फ्रॉम दैट इज द क्लास में अबाउट. तो चलो, dv by v मीन्स 0.01%, बट परसेंट को डेसिमल बनाओ डिवाइडेड बाय 100 करके, दैट मीन्स 0.0001 ऐसा होगा ये. दैट मीन्स दिस इज 3 10 to the power 9. 3 10 to the power 9. ये तो 10 to the power -4 हो गया ना. दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. समझे? यहां से क्या क्या सीखे देखो हम लोग. यहां से हम लोग सीखे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं बैठाना है, उसका बदले में ये रिलेशन यूज कर लेना है टू कन्वर्ट इट टू एसआई. सेकेंड सीखे कि फॉर्मूला में परसेंटेज अगर दिया हुआ रहेगा तो परसेंटेज का माने होता है डीवी बाई वी, डीएल बाई एल, ये सब का माने होता है परसेंटेज. अच्छा, इसका माने क्या ये हो गया? नेक्स्ट पेज में जाता हूं मैं. इसका माने क्या ये हो गया? दैट मीन्स इफ वी राइट स्ट्रेन, तो स्ट्रेन माने तो चेंज बाय ओरिजिनल. चेंज बाय ओरिजिनल माने डी ऑफ समथिंग बाय दैट क्वांटिटी. स्ट्रेन माने ये है डीएल बाय एल, लॉन्गिट्यूडिनल, डीवी बाय वी वॉल्यूमेट्रिक. तो स्ट्रेन माने अगर ये है,
that means it can be expressed in terms of percentage. So how to get strain from percentage value? So you may remember this or write this. Percentage divided by 100 equals to strain. Simple माने ये है. Percentage value divided by 100, that means strain. और एक चीज about strain, very very common, students make mistake. क्या? strain अगर 100% है, इसका माने longitudinal strain I'm talking about. Length has doubled. हाँ, ये कैसे? strain 100% में length has doubled. Yes. देखो एक बार सोच के देखो. Suppose vertically draw करो. Suppose this was a rod. Length कितना? L. अच्छा, ये rod को बढ़ा दिए, ये इतना हो गया. इसका elongation कितना हो गया? 100% माने तो उतना ही वैल्यू जितना ओरिजिनल है उतना ही चेंज हुआ. तो इसका स्ट्रेन कितना हुआ? स्ट्रेन माने तो ओरिजिनल, स्ट्रेन माने तो चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन. दैट मीन्स 1 इन फ्रैक्शन इट इज 1. और 1 माने कितना परसेंट? 100%. दैट मीन्स स्ट्रेन 100% माने लेंथ हैज डबल्ड. जितना ओरिजिनल है उतना और एक्सटेंशन हो गया, इलोंगेशन हो गया. दैट इज द स्ट्रेन 100% मीनिंग. और इसको ये भी बोल सकते हैं यूनिटी. यूनिट स्ट्रेन माने देखोगे क्या माने है, और उससे सम्स डेफिनेशंस कितना आसानी से दिया जा सकता है. देखोगे अगर तुमको बोल दिया कि यंग्स मॉड्यूल, हाँ देखो, ओ प्रीवियस पेज बोल जाओ. दिस वन हो जा. हाँ देखो अनदर थिंग देखो, देखोगे यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ सब्सटेंस इज गिवन बाय 2×10⁻12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. फिर बोला कि एक्सप्लेन करो फैक्ट को. और एमसीक्यू आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बोलेगा इट मींस, बोल के 4 ऑप्शन दे देगा. इसका माने क्या है जानते हो? इसका माने है y इक्वल्स टू, है तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही, और स्ट्रेस को ये लिख सकते हैं फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन. मैं स्ट्रेन को जानबूझ के लैंग्वेज में लिखा. व्हाई? बिकॉज आई वांट टू मेक दिस 1. तो इसको क्या बोलेंगे? यूनिट स्ट्रेन. इसका माने क्या हो गया? 100% स्ट्रेन. इसका और माने क्या हो गया? लेंथ डबल्ड. सब माने समझ रहे हो? इजी है, इसलिए चैप्टर टफ लगता है. वी डोंट अंडरस्टैंड बेसिक मीनिंग्स. बड़े बड़े थ्योरी हो गए, फॉर्मूला बना लिए. ये सब सिंपल चीजें हैं जहां पे वी गेट स्टक. तो स्ट्रेन 1 बना दिया, दैट मींस यूनिट स्ट्रेन. अब क्या होगा? अब होगा कुछ, पर और भी कुछ होना करना चाहते हैं. क्या? वी वांट टू मेक द एरिया ऑल्सो यूनिट. यूनिट माने 1. इसका क्या, इसका डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वैल्यू क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसका डिस्क्रिप्शन कि इफ वैल्यू कितना दिया? 2×10⁻12, इतना न्यूटन फोर्स is applied per यूनिट एरिया. हो गया यूनिट एरिया. किस लिए अप्लाई क्यों किए? टारगेट क्या था लाइफ में? टारगेट ये था टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन.
दिस फोर्स इज अप्लाइड, इफ को काट देते हैं, लैंग्वेज खराब हो गया, हाँ अब ठीक है। दिस 2 10 to the power 12 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड, सो इज अप्लाइड ना लिख के लिख रहा हूं नीड्स टू बी अप्लाइड। तो इतना फोर्स नीड्स टू बी अप्लाइड किस लिए? टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन, दैट मीन्स लेंथ डबल, पैसा डबल नहीं, लेंथ डबल बोल रहा हूं। तो लेंथ डबल करना है अगर, तो क्या करना चाहिए? जितना यंग्स मॉड्यूलस है उतना फोर्स अप्लाई करो। तो यंग्स मॉड्यूलस का क्या डेफिनेशन ऐसे हो सकता है? द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, सुनो ठीक से, मैं ऐसे बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस यूनिट स्ट्रेन इन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड यंग्स मॉड्यूलस। मतलब सिंपल माने बोलूं, सबको 1 बना दो, फोर्स छोड़ के, अदर देन फोर्स मेक एवरी क्वांटिटी 1, और उसको लैंग्वेज में कैसे बोलना? यूनिट। Amount of force applied per unit area to produce unit strain in a substance is called the Young's modulus of that substance. Substance, object नहीं, object अलग अलग ले लो ना, लोहा का 5 ऑब्जेक्ट ले लो, वो Young's modulus सेम ही रहेगा उसका। It depends only on material, not shape size. हाँ, MCQ में ये भी दिया। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, सीख लिए। अब सिर्फ इसको कर लो तो जान लेंगे। हाँ, ये एक पार्ट खत्म। कौन सा? कि ऐसा एक क्यूब है, क्यूब जिसका ईच साइड है ए, ईच साइड ऐसा क्यूब है, क्यूब 3D, चलो ड्रॉ ही कर देता हूं। ईच साइड ए है क्यूब का, ओके। अब क्या करना है? बोला है कि ये क्यूब का ईटा दिया हुआ है, माने मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब टेंजेंशियल फोर्स देंगे ऐसे, तो इसका ईटा दिया हुआ है 10 to the power 14। बाप रे, ईटा दिया हुआ है 10 to the power 14, और ये सारे फैमिली का तीनों लड़के ई का, कौन कौन? वाई, बी एंड ईटा, सेम यूनिट, कितना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ईटा दिया हुआ है। एरिया ए, एरिया ना, ए मीन्स ईच साइड ऑफ द क्यूब, ईच साइड दिया हुआ है 1 मीटर ईच साइड, चलो ए दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऐसे टेंजेंशियली? What amount of force needs to be applied so that its shear, माने shearing angle becomes ½ degree? वही बोल रहा था ना, ½ degree। वो देखो डेटा फिर से वही सिमिलर टाइप का है। Let us do this। कैसे देखो, we know, मालूम नहीं होगा लिखना, we don't know, पर लिख के आना, ईटा इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन ही तो है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन माने tan थीटा हुआ था, tan थीटा के बदले में थीटा लिख दिया था, थीटा स्मॉल होने से, थीटा तो स्मॉल है, देखो 0.5 है, हाफ, दैट इज f बाय a थीटा। तो फ्रॉम दिस जो चाहिए उसको लेफ्ट साइड में लाओ, फोर्स इज आस्क्ड, सो फोर्स को लेफ्ट साइड में लाओ, तो f इक्वल्स टू ईटा थीटा, बाप रे, कौन सा फॉर्मूला है? ईटा थीटा डिवाइडेड बाय, सॉरी, ईटा थीटा, हाँ, इनटू ए, इसका साथ ए भी आ जाएगा, सो एफ इक्वल्स टू ईटा थीटा ए। ये कैसा फॉर्मूला? देखो ये फॉर्मूला, इसको याद रखना, ये तो ऑटोमेटिक आएगा। चलो इससे वैल्यू पुट करते हैं। ईटा 10 to the power 14 ऐसा है तो हाँ ठीक है, थीटा রেডিয়ানে কনভার্ট করতে হবে। তাহলে গ্যাপটা কেন রেখেছি বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এ को ना कैपिटल है लिखो, कैपिटल, क्योंकि स्मॉल है माने साइड है, यहाँ पे स्मॉल है माने, ठीक बोले जो, दैट इज राइट। तो
हाँ 14 ठीक बोले છો 10 to the power 14 right. I'm glad you are noticing all this. Very good. So eta is this much. Theta we are converting it, but what would be the area? Side square? 1 square. Okay. Now, how to convert half degree into radian? Jaldi bolo. Say into pi by 180. Into pi by 180. Very good. Pi by 180. Very good. बस यही है और क्या. अभी फिलहाल पाई को पाई रखो. So it would be pi 360 10 to the power 14. हाँ इसको 36 कर सकते हैं और 10 to the power 13. तो एनीवे दिस इज द आंसर. अभी कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, कुछ थ्योरीज करना है एक दो छोटा छोटा. तो एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड हाउ टू मेक एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूलाज. कैसे क्या चेंज करना है, किसको कन्वर्ट करना है, ये सब वी अंडरस्टैंड दिस. सिर्फ एक चीज देखो, हेडिंग दो वर्क डन इन स्ट्रेचिंग अ वायर. तार को टान के बढ़ाएंगे, वर्क डन कितना होगा, यही लास्ट टॉपिक है. लास्ट टॉपिक का 2 लाइन है. कैसे वर्क डन चाहिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ इंटू एस, या तो दोनों में से एक होगा. इफ फोर्स इज कांस्टेंट एफ एस, इफ फोर्स इज नॉट कांस्टेंट इंटीग्रेशन एफ डी एक्स. तो यहां पे फोर्स होता कितना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ एल, माने हम लोग सीखे थे y इक्वल्स टू एफ एल बाई ए एल. तो वहां से f कितना आएगा, y a l बाई कैपिटल एल. यही तो होगा ना फोर्स. अब ये फोर्स का फॉर्मूला से देखो, मोर द इलोंगेशन यू मेक, स्मॉल एल जितना बढ़ाओगे, मोर द इलोंगेशन यू मेक, मोर द फोर्स इज रिक्वायर्ड. मैंने इसको 10 सेंटीमीटर बढ़ाना है रस्सी को. There is a thread, suppose you want to stretch it by 10 centimeter, the amount of force you will apply. If you want to stretch it by 15 centimeter, you have to apply different force. So as its stretching, that is elongation, goes on being more and more and more, so force is also varying. Force is not constant here. So we cannot apply this formula. तो और क्या, इसको हटाओ, इसको साइड में लेके जाओ. So this should be the formula. Let us do this. बस यही है और क्या. बैठाओ y a l बाई कैपिटल एल, ये कौन हो गया, ये हो गया फोर्स इंटू डी एक्स. जो है ना डी एक्स, उसको डी एक्स मत लिखना. डी एक्स अगर एक्स रिलेटेड कोई टर्म है तो डी एक्स. यहां पे वेरिएबल कौन है, इलोंगेशन स्मॉल एल. यहां पे वेरिएबल कौन है, यल बाई एल में, आई मीन वाई ए एल बाई एल में. यंग्स मॉड्यूलस कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट, लेंथ कांस्टेंट. फिलहाल एरिया कांस्टेंट मानो. तो स्मॉल एल इज ओनली वेरिएबल, तो यहां पे डी एक्स का बदले में लिखो डी स्मॉल एल. और इलोंगेशन तुम कितना करना चाहते हो, 0 था इलोंगेशन शुरू में व्हेन यू डिडंट अप्लाई एनी फोर्स, और इलोंगेशन होते होते फाइनली स्मॉल एल हुआ. तो लिमिट लो 0 टू स्मॉल एल. सारे कांस्टेंट को बाहर निकालो. वाई मैं कांस्टेंट हूं, एरिया मैं भी कांस्टेंट हूं, कैपिटल एल मैं भी कांस्टेंट हूं. तो कौन रह गया, सिर्फ स्मॉल एल डी एल. लिमिट 0 टू एल, वाई ए डिवाइडेड बाई कैपिटल एल. एल डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स डी एक्स का क्या होगा, एक्स का पावर एक बढ़ जाएगा, नीचे वो पावर होगा. तो स्मॉल एल का भी इंटीग्रेशन वही होगा. दैट मीन्स स्मॉल एल स्क्वायर बाय 2. Therefore, work done in stretching a string. हो गया, थ्योरी खत्म. कौन सा, यल स्क्वायर. मैंने ऐसे बोलो, जस्ट यू रिमेंबर दिस, या तो मेक सम अदर आइडिया टू रिमेंबर दैट. वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कैपिटल एल. This is the formula for work done.
अनदर थिंग क्या है, देखना, इधर यू हैव y और यू हैव f. y को अब रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, कैसे? y कैन बी रिप्लेस लाइक दिस, fl by al, y का बदले में बैठा, फिर a l स्क्वायर 2l जैसा है लिखो, जैसा लिखो, तो a एक कट नहीं जाएगा, यस, स्मॉल l तो एक कट गया फिर से, तो क्या बचा? अरे कैपिटल L भी कैंसिल, वाह अच्छा लग रहा है, अब कैंसिल होने से कितना अच्छा लगता है, देखो हाफ को अलग कर दो, कैपिटल F अलग, एंड सेपरेट विल बी स्मॉल l माने इलोंगेशन। एनीवे, तो वो जो है ना, इसमें सिर्फ ये एक लाइन लिख दो, तो वर्क डन पर यूनिट, माने एज फार एज थ्योरीज आर कंसर्न आई एम सेइंग ऑफ दिस चैप्टर, पर यूनिट वॉल्यूम। अब समझ रहे हो ऊपर वाला पिक्चर में क्यों ड्रॉ किया? तो वो यूनिट वॉल्यूम का क्या होगा भाई? सिंपल होगा, हाफ FL वर्क डन लिख दो भाई, वॉल्यूम, ये तार का वॉल्यूम कितना, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दैट वायर, एरिया है, लेंथ L। फॉर्मूला थोड़ा टफ है मानता हूं मैं, लेकिन करना तो पड़ेगा ना, 11 हो गया, A इंटू L वॉल्यूम हो गया, ये तो वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यूनिट वॉल्यूम माना। तो अब देखो तो ये कितना हो गया, हाफ। अच्छा ये आदमी कौन है देखो तो, हु इज दिस पर्सन? अरे ये तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस। तो ये आदमी फिर कौन है? अरे ये तो स्ट्रेन है। 4 मार्क्स देता है या तो 3 मार्क्स, अभी बोल सकते हो, पहले 4 आता था, 3 मार्क्स मिलेगा इसमें। प्रूव दैट वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इज गिवन बाय हाफ स्ट्रेस स्ट्रेन। कहां से शुरू करना है? यहां से, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर और यहां तक करना है। और अदरवाइज MCQ में यू कैन हैव डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूला। MCQ में ये अभी खत्म नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि या तो ये आ सकता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, या तो ये भी हो सकता है, कैसे? हाफ y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेन इक्वल्स टू कितना हो सकता है? स्ट्रेन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेन ऊपर चला जाएगा और y नीचे आ जाएगा। स्ट्रेस इंटू स्ट्रेस कितना हो जाएगा? स्ट्रेस स्क्वायर। ये भी आ सकता है, दिस फॉर्म इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हाफ स्ट्रेस स्क्वायर बाय y, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग अ वायर। छोटा मोटा फॉर्मूला से साम भी आ सकता है, ये ज्यादा काम आएगा, सिंपल वाला, हाफ फोर्स लेंथ। नाउ वी हैव रीच्ड द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में कुछ नहीं, ग्राफ ड्रॉ कर लो, छुट्टी, द क्लास इज ओवर। ग्राफ कैसा है देखो, ये ग्राफ को ड्रॉ करो, मे बी ये ग्राफ से क्वेश्चन, या तो ग्राफ ही ड्रॉ करने बोलेगा, नहीं तो इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन MCQ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, और सिंपल सा है, देखो मैं बता दे रहा हूं कैसा ग्राफ है। देखो ओरिजिन O से ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन हो गया ग्राफ। फिर स्ट्रेट लाइन को थोड़ा सा कर्व करना, अब नाम ऐसे, O जब जितना तक द पॉइंट अप टू विच यू हैव ड्रॉन इट स्ट्रेट, उसका नाम दो P। उसका बाद थोड़ा सा ऊपर करके एक पॉइंट E, हर एक पॉइंट का नाम का माने है E। उसका बाद ये ऐसे ऊपर जाएगा कार्व करके, कार्व करके माने कोई भी कार्व, ऐसा ऐसा, ये ऐसा वैसा कार्व। क्यों? बिकॉज ये कोई नियम फॉलो नहीं करता है। हुक्स लॉ बोलता है कि भाई मान ले मेरा बात, हुक्स लॉ नहीं मानता है। क्यों? बिकॉज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैव चेंज्ड। मैं बता रहा हूं, बस ये हो गया। इसका बाद इसका ऐसा आया कि ज्यादा उड़ने लगा था ना,
किसी का बात नहीं मान रहा था, लो गया ये यू पॉइंट तक आ गया। यू पॉइंट कौन है? तो आई एम गिविंग यू दैट PDF, डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग इन डिटेल। बट ड्राइंग खुद से बनाओ, वो सब देख के नहीं होता है, अदरवाइज यू विल नॉट अंडरस्टैंड इट, और अंडरस्टैंड होगी भी गया तो रिटेन नहीं कर पाओगे अंडरस्टैंडिंग खत्म होने से। तो चलो, आइडिया इज दिस, द O2P part where it is a straight line। अच्छा बताओ तो ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कब होता है? ग्राफ जब y एक्सिस और x एक्सिस कैसा होता है? ग्राफ स्ट्रेट लाइन Sir, directly proportional. वेरी गुड, वेरी गुड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो दिस पार्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y एक्सिस और x एक्सिस होगा। अरे कोई आदमी बोला था ना, कोई फेमस आदमी ऐसा होगा करके प्रेडिक्शन किया था, हुक्स लॉ। हाँ, हुक्स लॉ, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर विद इन क्या लिमिट? Sir, elastic. वेरी गुड, विद इन इलास्टिक लिमिट। सो विद इन इलास्टिक लिमिट दे आर प्रोपोर्शनल। बट यहां पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है। क्या? इसको हम लोग लिखेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट, सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट। So this is called proportional limit, and then तब आता है पॉइंट E को लिखो इलास्टिक लिमिट। ये है इलास्टिक लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट कौन है? स्टोरी बता रहा हूं, सुनो। ये एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग, वो स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर टान के छोड़ दिया वापस, 4 सेंटीमीटर टान के छोड़ दिया वापस, 5 सेंटीमीटर टान के छोड़ दिया वापस, ओके। बट एज वी मेड इट 6 सेंटीमीटर, तब भी वापस गया। दैट मीन्स टू सम एक्सटेंट, से फॉर एन एग्जाम्पल अप टू 5 सेंटीमीटर जब टान के छोड़े थे, तब स्ट्रेस कितना था? ये था स्ट्रेस। स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस्ड हुआ? स्ट्रेन माने याद आ रहा है चेंज इन लेंथ और एनीथिंग। सो इफ वी कंसीडर रॉड, चेंज इन लेंथ, सोचो याद है स्ट्रेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑल्सो। टू परसेंट से भी कम अगर स्ट्रेन हुआ, या तो 0.2% मान लो, वेरी लेस अमाउंट ऑफ स्ट्रेन, तो वैल्यू देने का जरूरत नहीं है, ऐसा ही होता है नियरली अबाउट। वैल्यू देने का जरूरत नहीं, बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस टू सब्सटेंस। रबर और स्टील सेम नहीं होगा, तो वैल्यू देने का जरूरत नहीं। मैं बोल रहा हूं ऐसे, जैसे 1-2% हुआ ना स्ट्रेन, मतलब थोड़ा सा, देन इट ओबेज हुक्स लॉ। तो शॉर्ट क्वेश्चन अगर ये आ गया, व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ ओबेज हुक्स लॉ? ओपी ओबेज हुक्स लॉ, मतलब स्ट्रेस डबल, स्ट्रेन डबल, स्ट्रेस 3 टाइम्स, स्ट्रेन 3 टाइम्स। बाय द वे एक चीज और बता कर रखता हूं, व्हिच अमंग दिस टू थिंग्स, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इज मोर एलिमेंटरी अ प्रॉपर्टी? एलिमेंटरी माने वो होगा तब जाके दूसरा चीज होगा। Which one is more elementary? स्ट्रेस ना स्ट्रेन? स्ट्रेस देने से स्ट्रेन होगा कि स्ट्रेन देने से स्ट्रेस होगा? स्ट्रेन इज राइट आंसर। स्ट्रेन इज राइट आंसर। स्ट्रेस डज नॉट मीन एक्सटर्नल फोर्स बाय एरिया। शुरू में बोला था स्ट्रेस का एक्चुअल डेफिनेशन था द इंटरनल फोर्स जनरेटेड पर यूनिट एरिया। तो इंटरनल फोर्स जनरेट कब करेगा? व्हेन यू हैव स्ट्रेन्ड अ बॉडी, माने उसका डायमेंशन चेंज करोगे तभी ना इंटरनल फोर्स उसको वापस लाएगा, बाय अप्लाइंग रेस्टोरिंग फोर्सेस। दैट मीन्स स्ट्रेन इज मोर एलिमेंटरी अ प्रॉपर्टी देन स्ट्रेस। क्वेश्चन आता है, ठीक है, चलो वापस आ जाते हैं। सो दिस मच ऑफ स्ट्रेन तक स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल। उसका बाद मैं एग्जाम्पल याद करो, मैं मजाक से बोला था कि 6 सेंटीमीटर स्ट्रेच किए, छोड़ दिए, लास्ट वापस आया। सो
द पॉइंट अप टू विच इफ यू स्ट्रेच अ बॉडी, माने स्ट्रेस अगर बढ़ाओगे, द पॉइंट अप टू विच इफ यू रिमूव द एक्सटर्नल फोर्स, बाहर से जो फोर्स दे रहे तो छोड़ दिए, on removal of the external force, the body finally backs to the unstrained conditions of length, volume, or shape size. That point is called elastic limit. That limitation or that limited value of force or stress is called elastic limit. नाम क्या दिए? E उसलिए दिए, elastic. Okay. So, if elastic limit is E, P is proportional limit, इसका बाद क्या हो जाता है? इसका बाद at any point यहाँ पे where the stress is slightly more, strain भी बढ़ गया है, देखो अब ना तुम 6 सेंटीमीटर से भी ज्यादा elongate करके अगर छोड़ दोगे, it will not be back to unstrained condition. तो a permanent set will develop. That means a permanent deformation will stay with it. इसको একদম রাইট, একদম যেমন স্প্রিং হয়, তো স্প্রিং উইল রিমেন উইথ সাম ডিফরমেশন। উই So simply 5 centimeter is the elastic limit for that particular spring. yeah, just for an example 5 centimeter, it may be 5 millimeter also, just for an example. okay, Yes. ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है कि इफ वी नाउ डू दिस, कि इफ वी सपोज रिलीज द फोर्स फ्रॉम हियर, व्हाट विल हैपन, ई पॉइंट तक यहां पे ग्राफ जाके अगर लोड छोड़ देंगे तो ये वापस उसी को पकड़ के वापस आ जाएगा ग्राफ, दैट मीन्स इट विल रिट्रेस इट। बट इफ यू रिलीज द फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर यू हैव क्रॉस पास्ट ई पॉइंट, इट विल नॉट बी बैक टू ओरिजिन। ओरिजिन माने नो स्ट्रेन, स्ट्रेन माने चेंज, सो नो चेंज वाला पोजीशन में वापस नहीं आएगा, तो इट विल बी बैक बीइंग पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, ये लाइन का पैरेलल होकर पीछे आ जाएगा ऐसे, और यहां से यहां तक इसको क्या बोलेंगे, ये पार्ट, दिस इज परमानेंट सेट, माने परमानेंट डिफॉर्मेशन इतना रह जाएगा। इसका बाद बहुत बहुत मजेदार एक केस होता है, इफ यू फर्दर कीप ऑन स्ट्रेचिंग इट, माने स्ट्रेस और बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा इंक्रीज इन स्ट्रेस विल लीड टू सडन टू मच ऑफ इंक्रीज इन स्ट्रेन, सडन इंक्रीज इन स्ट्रेन, स्ट्रेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, प्रोपोर्शनल तो है ही नहीं, मतलब इफ यू डबल स्ट्रेस, स्ट्रेन 4 गुना 5 गुना हो जाएगा। That means strain increases rapidly with slight increase in stress. और उस पार्ट में क्या होता है कि द डायामीटर, मोटा रॉड था वो ना पतला होना शुरू कर देगा ऐसे, तो उसका मटेरियल जो था, ये अगर रॉड था और ये अगर पतला होना शुरू कर देगा ऐसे, ये पार्ट को बोला जाता नेक, नेक फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो जहां पे नेक फॉर्म करेगा तो यहां पे थोड़ा देर पहले ये जो पार्टिकल्स था वो कहां गया, यहां पे जो पार्टिकल्स था, वेयर हैव दे गन, दे हैव फ्लोन टू साइड वाइज, साइड में फ्लो कर गया। दैट मीन्स ये पार्टिकल्स अब इधर आ गया करके ऐसे, लाइक दिस, सो इसका लेंथ बढ़ जाएगा ऐसे, वो पार्टिकल्स इधर फ्लो कर गया, सो अगर बोलेगा व्हिच पार्ट ऑफ द ग्राफ can be compared to liquid state of a substance, तो वो पार्ट होगा ये आफ्टर E to U, and this part, this behavior is called plasticity. This behavior is called plasticity, plastic behavior. This part of the graph after E, यहां से लेके ये पार्ट तक, ये रीजियन को कौन सा रीजियन बोलेंगे, प्लास्टिक रीजियन। दैट मीन्स मटेरियल्स फ्लो, द डायामीटर बिकम्स नैरोअर, एंड बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक टाइम आएगा, एज एवरी गुड थिंग हैज एन एंड, कि द वायर स्नैप्स, टूट जाएगा। इंजीनियरिंग में ये एक्सपेरिमेंट करोगे,
अदरवाइज सिंपल माने आटा लेके ऐसे करोगे तो हो जाएगा, बट आटा इज नॉट अ रिजिड ऑब्जेक्ट. तो फॉर रिजिड ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो वी कैन सी दिस. The point at which the amount of load or stress for which, stress ही मानो, the amount of stress for which a body ruptures, snaps, breaks is called ultimate stress. That's why I have written U. That value of stress for which a body fails is called ultimate stress. अल्टीमेट स्ट्रेस भी स्ट्रेस ही है, होगा क्या, फोर्स बाय एरिया, दैट्स इट. इससे साम आ सकता है अल्टीमेट स्ट्रेस. आई हैव गिवन यू अ पीडीएफ, वहां पे दिया हुआ है, डोंट वरी. तो दैट इज द ग्राफ. यहां पे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहता हूं, देखो जहां पे हुक्स लॉ मानता है ओपी, हुक्स लॉ मानता है ओपी, तो वहां पे ये सिर्फ बोल दो तो क्या होगा, स्लोप ऑफ द ग्राफ. माने तो हम लोग जानते हैं टेन थीटा, टेन थीटा माने ये भी जानते हैं वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस. तो वाई एक्सिस में क्या लिखा हूं, एक्स एक्सिस में कौन है, अरे ये तो हुक्स लॉ आ गया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. दैट मीन्स व्हाट, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन माने तो इफ वी आर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट विद अ वायर, दैट मीन्स लेंथ चेंजेस, दैट मीन्स स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस. दैट मीन्स स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज यंग्स मॉड्यूलस. दैट मीन्स यहां पे तुमको अगर दे देगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में ए और बी बोल के दो मेटल्स, टू मेटल्स आर देयर, ए एंड बी, जिसको लेके हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट किए. वाई यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए और यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बी में क्या रिलेशन होगा बताओ, किसका स्लोप ज्यादा है, मोर स्लोप, YB greater than YA. very good, YB greater than YA. Slope of B is more than slope of A, क्योंकि एंगल उसका ज्यादा है B का, that means उसका B भी यंग्स मॉड्यूलस भी ज्यादा होगा. If this is stress versus strain graph, बस ऐसा टाइप का क्वेश्चन है. Some देखो, some materials are there which are called elastomar, पॉलीमर टाइप, इलास्टोमार. इलास्टोमार का क्या है कि दे डोंट ओबे दिस ग्राफ, उसका ग्राफ ऐसा होता ही नहीं है. इलास्टोमार का ग्राफ ऐसा हो जाता है, इलास्टोमार का ग्राफ मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ ऐसा हो जाता है कि इसका एक चीज याद रखना, ये कब जो टूटेगा, इलास्टिक लिमिट और ब्रेकिंग स्ट्रेस माना अल्टीमेट स्ट्रेस, वेरी क्लोज टू ईच अदर. बाय. Thank you, sir. हाँ, Thank you, sir. Good Thank night. Sir, good night. Thank you, Good. sir. Good night. Good night. Thank you, sir. बाय.